Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to our channel Online Learning. This video is related to Infosys TCS 2024 hiring trends. In this video, we will discuss about the Infosys exam roles, how to prepare an onboarding. Similar as for TCS, this hiring opportunities or this video is for BE, BTech, ME, MTech, MCA and for non-tech courses as well. So before starting the video, one of the most important point, apply for that opportunity in which your batch is eligible. Check that hiring is on campus or off campus. Okay, so let's discuss about the Infosys examination. As we know, Infosys conduct examination every year. Okay, like NFTQ, second is Hack with Infi, third is mass hiring, that is a system engineer examination. Okay, so for the system engineer role, this is a off campus. Okay, and fourth is on campus hiring. Yesterday in so many group a link is shared, okay, that is related to InStep, Infosys InStep, but this opportunity is only for partner colleges, friend. Okay, this opportunity is firstly, this opportunity is not a direct test opportunity, and this opportunity is only for partner institution. I will show you something on screen. Okay, as you can see on my screen that this is a Infosys InStep portal. Okay, so when we click on frequently asked question, so they mention that who can apply. So they mention student who are enrolled in our partner institution can apply for InStep. So most probably this is for on campus, and like this is for only for some colleges. Okay, so this is very important point. What about the other examination? Okay, as we know, NFTQ is conducted from 2020 year. 2021 examination also conducted, 2020 also conducted, 22 also conducted, 23 also conducted. We are waiting for 2024 registration. But when we checking the Infosys next like Infosys NFTQ certification page, so they mention that registrations are currently closed. You will be notified once they are open. And this time hack with Infi examination, they only take top 100 candidates from this examination. Okay, and that time this is on campus, because I think due to recession the demands is very less and the opportunities are very less according to like 2022 or 2021 year. So one of the most important point that I have to mention, if Infosys announced the mass hiring for tech courses, definitely I will also share and other content creators also share the opportunity with you. Okay, ऐसा नहीं है कि हम वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे, बट हम आपको ऐसी गलत हायरिंग नहीं बता सकते कि मतलब जैसे मान लीजिए कि इन स्टेप हायरिंग जो है दैट इज ओनली फॉर पार्टनर इंस्टीट्यूशन, बट अब मैं आपको ये नहीं बोल सकता हूं, उन्होंने तो फॉर्म में 24 और 25 बैच भी दे रखा है, बट मैं कैसे आपको बोल दूं कि यह अपॉर्चुनिटी ऑफ कैंपस है, बिकॉज दिस इज ओनली फॉर सम कॉलेजेस। और यहाँ पर एक कॉलेजेस वाला सेक्शन है, ठीक है, कॉलेजेस वाला सेक्शन जाके देखिए, वहां पर आपको पता चल जाएगा, उन्होंने बहुत कम कॉलेज को लिस्ट कर रखा है। ठीक है, आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर इन स्टेप प्रोजेक्ट मैनेजर काफी सारी चीजें उन्होंने बता रखी है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अब इन्फोसिस के इन स्टेप पोर्टल पे जाके पहले चेक कीजिए कि ये पार्टनर कॉलेज के लिए। बात करते हैं मास हायरिंग के बारे में। सो 23 की भी मास हायरिंग अभी तक नहीं आई है ड्यू टू डिमांड्स, सो वी हैव टू वेट। ऑन कैंपस में अभी हैक विद इन्फी आ चुका है 24 बैच के लिए, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सेकेंड पॉइंट्स, कौन कौन से रोल्स आपको इन्फोसिस में मिलते हैं। इन्फोसिस में 3 टाइप के रोल होते हैं, सिस्टम इंजीनियर, डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर एंड स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर। ओके, सो आपको बता दूं यहाँ पर जो पैकेज रहेगा वो 3.6, यहाँ पर 6.25 एलपीए और यहाँ पर 9.5 एलपीए। एक ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का भी होता है या फिर प्रोसेस एग्जीक्यूटिव का, जिसमें बीसीए, बीएससी या फिर नॉन टेक कोर्सेज एलिजिबल रहते हैं। सो दिस आर द रोल्स। इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, जब ये अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम आपको एप्टीट्यूड और जो स्यूडो कोड है या फिर कोडिंग की वीडियो है, इंटरव्यू की वीडियो है, वो सब प्रोवाइड करेंगे। ऑनबोर्डिंग के बारे में बताऊं तो 22 बैच की ऑनबोर्डिंग अभी बची हुई है। मेनी कैंडिडेट्स आर स्टिल वेटिंग फॉर इन्फोसिस ऑनबोर्डिंग, सो वी हैव टू वेट फॉर इन्फोसिस अपडेट। ओके, कुछ स्टेटस में चेंज हुआ है अभी 22 बैच की ऑनबोर्डिंग में, सो अब देखते हैं नेक्स्ट अपडेट कब आता है। Let's discuss about our TCS examination. The TCS conduct different examination every year. The first exam is TCS paid NQT. Okay, जो एवरी ईयर 3 से 4 बार होती है, इसमें आपको पैसे भरने और अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, बट इससे टीसीएस निंजा और डिजिटल की हायरिंग बहुत कम होती है। फिर आती है टीसीएस फ्री एनक्यूटी। ठीक है,
अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, उन्होंने 21 की हायरिंग कंप्लीट कर ली, 22 की हायरिंग कंप्लीट कर ली, 23 की कंप्लीट कर ली, अब 24 बैच की भी हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो यू डू नॉट हैव टू मिस दिस। उसके बाद आती है हमारी बीपीएस हायरिंग जो अभी एक्टिव है। देखो दोनों हायरिंग आपको बताता हूँ। फर्स्ट ये हायरिंग है फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए 24, जिसमें बीई बीटेक और काफी सारी चीजें यहाँ पर मींस मतलब बीई बीटेक कोर्सेज एलिजिबल है, ठीक है। टेस्ट एलिजिबिलिटी आप देखेंगे तो यहाँ पर बीई बीटेक और कोर्सेज के बारे में उन्होंने बता रखा है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये बीई बीटेक कोर्स ये सारी चीजें बता रखी है। और बीपीएस हायरिंग के लिए कौन कौन एलिजिबल है? बीपीएस हायरिंग के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो बीपीएस हायरिंग के लिए नॉन टेक कोर्सेज एलिजिबल है, मतलब जैसे कि बीकॉम, बीए, बीएएफएफ, बीबीआई, बीबीए, बीएमएम, बीएमएस, बीएससी। और ये जो बीसीए और एमसीए की हायरिंग है, एमबीए की हायरिंग है, ये अभी बची हुई है क्योंकि इनके लिए अलग से कंपनी अपॉर्चुनिटी निकालेगी। सो डोंट वरी, यहाँ पर आपको एमबीए हायरिंग मिलती है, यहाँ पर आपको टीसीएस कोडविटा भी मिलता है, ठीक है, कोडविटा भी मिलता है, यहाँ पर आपको हैकवेस्ट भी मिलता है। इन दोनों से भी आपको निंजा डिजिटल की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर टीसीएस फ्री एनक्यूटी में एक रोल ऐड हो गया है प्राइम, जिसका पैकेज 9 एलपीए है बीई बीटेक कोर्सेज के लिए और 11.5 एलपीए है एमई एमटेक एमसीए कोर्सेज के लिए। तो रोल्स कौन कौन से होते हैं? निंजा होता है, डिजिटल होता है, प्राइम होता है, ठीक है, जिसमें आपको 3.3 या 3.5 की सैलरी मिलती है। यहाँ पर 7 का पैकेज, यहाँ पर 9 और 11.5 का पैकेज। फिर यहाँ पर स्मार्ट हायरिंग जो होती है उसका बीपीएस का पैकेज अलग होता है, वो डिफरेंट रोल रहते हैं क्योंकि उनका एक ऐसा पर्टिकुलर रोल नहीं रहता है। इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है? ऑलरेडी वी आर कंडक्टिंग द लाइव सेशन फॉर टीसीएस फ्री एनक्यूटी एग्जाम, सो यू कैन चेक ऑन आवर चैनल, ओके। व्हाट अबाउट द ऑनबोर्डिंग? ऑनबोर्डिंग इनकी फेजेस के हिसाब से होती है, ठीक है, और ये आपको ऑनबोर्डिंग देते ही देते हैं, मतलब ज्वाइनिंग जो रहती है वो आने के बहुत बहुत चांसेस रहते हैं। तो देखिए इनकी ऑनबोर्डिंग जो रहती है वो आपका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं, डिमांड से चेक करते हैं, तो ये सारी चीजें रहती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्फोसिस टीसीएस 2024 हायरिंग ट्रेंड्स। हमने देखा इन्फोसिस की दो, टीसीएस की 2 हायरिंग आ चुकी है, इन्फोसिस के लिए हमें वेट करना है। तो ये सारी एग्जाम्स और ये सारी हायरिंग होती है। अब कोई भी मतलब कोई भी लिंक आपके सामने आए तो आप चेक करें कि क्या वो इन क्राइटेरिया में बैठ रही है, क्या वो इसके अकॉर्डिंग है, फिर ही आपको अप्लाई करना है। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।